ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ? It was a big shock for me and my husband. पर धीरे धीरे we came to terms with it. They were like कुछ नहीं होना, सब कुछ चंगा ही होएगा. It is your willpower. You are strong, your family will be strong. Very curable. उनमें बैठी हाँ. At present I am cancer free. ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਕਿਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? अगर जो माँ ठीक है तो बच्चा ठीक ही होता है. जे माँ मिजरेबल है फिर बच्चा अपने आप मिजरेबल हो जाता है. ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? कैंसर बहुत ज्यादा फैला नहीं होता है तो दे प्रेफर गोइंग विद कीमोथेरेपी जब तक कि कोई और ट्रीटमेंट नहीं आता है. अभी कीमोथेरेपी ही होती है. मोर इज लेस. मतलब तुसी अग्रेसिव ट्रीटमेंट देंदे हो और कट ट्रीटमेंट नहीं देंदे. यू गिव मोर द ट्रीटमेंट. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी, थैंक यू ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੀ ਫੀਲ ਸੀ? 2-4 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? जब मुझे पता चला I was very shocked and it was like, why me? I had been on the very fitness path. I was not overweight. जो predisposing factors होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत जंक जरूर खाती थी, but I used to exercise. I was not overweight and it was like, why me? No history, nothing at all. So it was very surprising. बहुत surprising सी and it was a big shock to me. जी। एंड फॉरगेट मी, मतलब मेरे को ही नहीं था। जिस डॉक्टर के पास में गई, I know her very well. It was a big shock to her also कि how come you? So ऐसा था जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ किस तरह के सवाल सन? ओके तो जब मुझे पता चला, शुरू में तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी एंड माय हस्बैंड, दोनों के लिए इट वाज अ बिग शॉक, पर धीरे धीरे वी केम टू टर्म्स विद इट. ठीक है. फिर जब अपने फैमिली नाल शेयर किया, दे वर वेरी सपोर्टिव. दे वर लाइक कुछ नहीं होना, सब कुछ चंगा ही होएगा. एंड पर एक चीज मैं सबको, मतलब all the females, it is your willpower. You are strong, your family will be strong. जे तुसी break down कर जाओगे ना, your family will break down for sure. So they look at you and if you are strong, they are strong. वो सपोर्ट आपको करेंगे, पर उनको मतलब जितना बड़ा शॉक आपको लगा है उतना ही बड़ा शॉक फैमिली को भी तो लगता है. डेफिनेटली। ठीक है. You are an integral part of the family and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ so तुम्हारे your in-laws, your parents, your husband, your children, everybody is affected around you. तो वो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ हैं. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, they are perfectly fine. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ नहीं हो, they are more miserable than you are. उनको ये लगता है they are so helpless, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, but they are very helpless. So भगवान ना करे किसी ਨੂੰ हो, पर इन केस हो जाता है, बी स्ट्रॉन्ग. एवरीथिंग मतलब जे सही टाइम पे मिल जाए, पता चल जाए, इट इज वेरी क्योरेबल.
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ at present I am cancer free and I have been cancer free for what 1 2 almost 2.5 years. ओके। ठीक है, अपने टेस्ट कराते रहो सब, पर स्ट्रेंथ रखो, अपनी स्ट्रेंथ रखो, विल पावर, हर चीज देखो। डॉक्टर्स भी कहते सी इफ यू आर स्ट्रांग यू कैन बीट दिस, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਕਿਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ? ओके, जब मेरी जो बच्चे हैं दोनों कॉलेज चले गए थे जब मुझे डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तो मेरा एक मेंटल फ्रीडम था कि चलो बच्चे कॉलेज चले गए। एंड जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो बच्चों को अपराइट सामने नहीं बुलाया, बताया, क्योंकि मेरा पहले सर्जरी प्लान हो गई थी। ओके। तो जब सर्जरी प्लान हो गई, सो बच्चों को ये बोला एक लंप है, निकाल रहे हैं, ठीक है। बट यस, मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी डेंटल फील्ड में ही पढ़ाई कर रही है, तो उसको कुछ आइडिया था। बट देन दे वर लाइक ओके, मतलब दे न्यू ठीक हो जाएगा, वरना कुछ छोटी वाली को तो बताया ही नहीं था। सो उसके एग्जाम थे, वो जब आई तब तक आई वाज ऑपरेटेड, मतलब बाकी ट्रीटमेंट रह गया था, पर वो तो इट वाज लाइक कि भाई हुआ था, निकल गया है, अब फर्दर ट्रीटमेंट होना है। तो दे वर ओके, दे वर जस्टिंग, एंड वो मेरी शक्ल देखते थे, आई वाज ओके, तो वो भी फिर ठीक ही थे। बच्चे आपकी शक्ल देखते हैं, इफ यू आर ओके दे आर फाइन, यू बी नॉर्मल दे विल बी नॉर्मल। जी। बिकॉज डॉक्टर आप जी जी कंटिन्यू प्लीज। नहीं, बिकॉज एवरी टाइम नॉर्मल अफेयर्स में भी दे सी द मदर्स फेस। अगर जो माँ ठीक है तो बच्चा ठीक ही होता है, जो माँ मिजरेबल है फिर बच्चा अपने आप मिजरेबल हो जाता है। It's like that. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। हाँ, सी मेरा जब डिटेक्ट हुआ तो देयर वाज अ डिस्कशन कि पहले सर्जरी होनी चाहिए या पहले कीमो होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स इन दिस, पर अभी जब भी जो कैंसर बहुत ज़्यादा फैला नहीं होता है तो दे प्रेफर गोइंग विद कीमोथेरेपी, जब तक कि कोई और ट्रीटमेंट नहीं आता है, अभी कीमोथेरेपी ही होती है। सो मेरा पहले उन्होंने मेरी सर्जरी करके लंप निकाल दिया, एंड देन इट वाज प्लान्ड। माय एज वाज सच कि मैंने 1-2 जगह कंसल्ट किया, मैंने पीजीआई में कंसल्ट किया, फोर्टिस में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, बट आई कंसल्टेड पीजीआई आल्सो। तो उन्होंने भी कहा था एट योर एज कीमोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर नॉट ओल्ड, यू आर वेरी यंग, सो वी कैन नॉट रिस्क इट। एंड कैंसर ट्रीटमेंट में एक सेइंग चलती है कि मोर इज लेस, मतलब तुसी अग्रेसिव ट्रीटमेंट देंदे हो और कट ट्रीटमेंट नहीं देंदे, यू गिव मोर द ट्रीटमेंट, सो दैट मतलब इट इज अ ब्राइन प्रोसीजर। तो हाँ, मेरा ट्रीटमेंट फोर्टिस में चला, ठीक है, टेस्ट वगैरह इधर उधर हुए, पहले सर्जरी हो गई। माय सर्जरी वाज डन बाय डॉक्टर इकबाल एंड इट वाज वेरी नाइसली डन, एंड देन वी वेटेड फॉर द रिजल्ट्स। तो उसमें आ गया कि भाई एक नोडल इन्वॉल्वमेंट है, छोटा सा है पर है। तो फिर मेरी कीमोथेरेपी हुई, कीमोथेरेपी के बाद मेरी रेडिएशन हुई। इसमें एक इम्यूनोथेरेपी भी होती है, टारगेट थेरेपी भी होती है, बट वो मेरी जरूरत नहीं थी बिकॉज उसमें वो कहते हैं अगर जो फैल चुका है काफी तब हम वो चीजें करते हैं जी, वरना आपका इसी के साथ सफाइस कर जाएगा। हाँ, सर्जरी वाज ओके, मेरी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं उसमें, बट देन सब डॉक्टर्स यही कहते थे एक्सरसाइज से ठीक हो जाओगे, तो वो नाउ काफी कुछ ठीक हो गया जी। कीमोथेरेपी इज अ वेरी अग्रेसिव थिंग, और मेरी तो ट्रीटमेंट भी जो हुआ था वो बड़ा डोज डेंस हुआ था। डोज डेंस होता है कि जब एक डोज खत्म होने वाला, उसका असर बॉडी में खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ही दूसरे डोज का अटैक शुरू हो जाता है। ओके, सो इट वाज अ वेरी अग्रेसिव ट्रीटमेंट। मेरी 16 कीमो हुई थी, एंड सी आई विल नॉट से इट्स एन इजी ट्रीटमेंट, इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट ट्रीटमेंट। यू गेट मिजरेबल, आप खा नहीं पाते हो, आप
वीकनेस इतनी हो जाती है बॉडी में, मसल वीकनेस हो जाती है सारी, आप जी। नहीं खा पाते हो। पर आपको लिमिटेशंस हो जाती है, वो कहते हैं आप बाहर का खाना मत खाओ और ये चीजें, ओपन फ्रूट्स नहीं खाने हैं, जो फ्रूट्स छिल नहीं सकते वो नहीं खाने। इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिकली होता है। जी। मी बीइंग अ डेंटिस्ट, मतलब मेरे साथ और लोग थे जो ऑफिस जाते थे, उनको मना नहीं किया गया था, पर मुझे मना कर दिया था कि प्लीज आप पेशेंट पे मत काम करना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा होता है, ओके। तो इन्फेक्शन का डर रहता है। जी। तो ये था। फिर बहुत पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कीमो में ब्रेक लग जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा ये एम था कि बस मैंने बहुत जूस पिया, बीटरूट, गाजर, मैंने बहुत चीजें ऐसी, मेरा डाइट हेल्दी रखी, ज्यादा नहीं खा पाती थी, पर जो खाती थी वो हेल्दी खाती थी। मेरी कोशिश ये थी कि भाई मेरी हीमोग्लोबिन ना कम हो, बिकॉज हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो ब्लड चढ़ाते हैं और आपकी कीमो रुक जाती है और फिर वो और लंबा टाइम लगेगा। तो ओके। मेरा एम था भाई आई शुड बी ओके। सो 8 तक वो आपको देखते हैं, 8 के बाद वो डिप मारने लगते हैं, देन दे स्टार्ट गिविंग यू ब्लड। मेरी लास्ट कीमो में मेरा ब्लड जो हीमोग्लोबिन था वो 8.2 था, सो आई वाज सेव्ड। पर हाँ, वीकनेस बहुत होती है। आई लॉस्ट ऑल माई हेयर, माई एवरीथिंग। आई मतलब यू गेट बिल्कुल ऐश ग्रे कलर के हो जाते हो, बाल चले जाते हैं, सब कुछ है। पर एक चीज बताऊं, जहां मेरी कीमो होती थी वो एक डे केयर रूम होता है, वहां पे ओके। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कीमो चल रही होती है। सो एक दिन, एक सेकंड के लिए वहां पे डिप्रेशन नहीं होता किसी को। वहां का माहौल इतना लाइट होता है, एंड एवरीबडी इज होपिंग कि यस वी विल सरवाइव, पकड़ा गया जी, ठीक हो जाएंगे। इट इज सच अ हैप्पी एरिया। मतलब हमें बाहर से लगता है हाई कैंसर हो गया है, पता नहीं कैसे निकल रहा होगा टाइम, पर वहां पे एक सेकंड के लिए वो टाइम नहीं था। एवरीबडी यूज्ड टू बी टॉकिंग, स्माइलिंग, या सो रहे होते थे, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लाइट होता था, चाहे कितनी डिस्कम्फर्ट में। तो वहां से बहुत मोटिवेशन, कई लोग होते थे जिनको रिकरेंस हो गया था, उनको देख बहुत मोटिवेशन मिलता था। जी। सो इट इज गुड। ठीक था। मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था, बट वैसे ठीक था, एक्सपीरियंस वाज गुड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫॉर श्योर ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ वो विल आई बी कैंसर फ्री? वन, क्योंकि हर बार जब पेट स्कैन होता है बहुत डर लगता है, क्या निकलेगा। दैट थिंग इज देयर, क्या निकलेगा भाई, दिस नाउ व्हाट विल हैपन। जब जब मैमोग्राफी होती है, जब जब स्कैन्स होते हैं, एक डर रहता है, बिकॉज डॉक्टर्स आपको सिखा के भेजते हैं कि भाई रियकर हो सकता है। जी आप अपने दिमाग में यही डालते हो नहीं होगा, वी विल बी एवरीथिंग हेल्दी, सब कुछ हेल्दी खाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। बट हाँ, डॉक्टर्स आपके दिमाग में ये डर डाल देते, एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। ठीक है। सो डर यही रहता था रियकर ना कर जाए। उसके लिए फिर हम डाइट अच्छी करते हैं, जो वो प्रिकॉशंस कहते हैं, चेकअप्स कराते रहो। दैट इज द ओनली प्रोसीजर दैट वी कैन डू ना, प्रिकॉशन है हमारा। वी शुड गेट आवर चेकअप्स रेगुलरली डन। उस समय भी यही लगता था कि क्या रह गया, बट मेरा कैंसर बहुत जल्दी पकड़ा गया था। मतलब आई, जैसे ही मुझे पता चला, आई वेंट देयर एंड एवरीथिंग वाज डन इन अ पीरियड ऑफ 12 डेज। मतलब जिस दिन मेरा डिटेक्ट हुआ और जब मेरी सर्जरी हुई, 12 दिन थे, 12 दिन के अंदर सारे स्कैन्स हो गए, ट्रीटमेंट प्लान हो गया और मेरी सर्जरी हो गई। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि क्या हमारे साथ हो रहा है। अपना चेकअप्स खुद करो, कुछ प्रॉब्लम हो डोंट डिले इट, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। एंड डर तो लगता ही है, ये नाम ही इतना गंदा है, डर तो बहुत लगता है, पर यस वी हैव टू कम ओवर इट। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਮ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ना, नो, नहीं होता। ओके एक जब मेरी, मैं बता दी, जब मेरी कीमो चल रही थी, तो थर्ड कीमो थी, वो बहुत ही, मतलब कहते हैं कीमो ड्रग्स में वो सबसे गंदी दवाई होती है, उसको वो रेड मेडिसिन कहते हैं।
मेरी वो आपकी जान निकाल देती है। तो मुझ एक बार जब मेरी 3rd कीमो हुई या 4th थी पता नहीं, तो आई लिटरली वाज़ लाइक कि मेरी जान निकल गई है। पर मुझे उससे ज़्यादा नहीं पता चला, बिकॉज़ उसके बाद में आई थिंक आई स्लेप्ट ऑफ, मुझे सुला दिया था, मैं सो गई। तो मुझे उससे ज़्यादा नहीं पता, अगले दिन सुबह उठी तो मैं ठीक थी। मुझे बस एक वो चीज़ याद है, वरना जब कीमो होके आती थी, जान नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू स्लीप, सोती रहती थी। फिर मैं अगले दिन थोड़ी जान आ जाती थी, 3rd डे फिर और आ जाती थी। पर ऐसा नहीं लगा कि हाँ, हुन हिम्मत टूट गई। वो ना आप सबको देख के, आप देख रहे हो आपके बच्चे भी हैं, सब है, तो आपको हिम्मत तोड़ने नहीं देते वो। यू हैव, मतलब वो आपको एक मोटिवेशन देते रहते हैं, नहीं ठीक हो जाओगे। घर में बुजुर्ग होते हैं, वो भी, मेरी मदर इन लॉ ने आके कहना, ना ना टेंशन ना ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो नहीं दिल हिम्मत तोड़ने देते, नहीं हुआ। और अपने दिमाग को, हाँ, मेरी फ्रेंड्स ने, डॉक्टर पूनम गुप्ता है, एक और फ्रेंड है, उन्होंने कहा एक हॉबी डेवलप करो, तो मैंने प्लांट्स रखने शुरू किए, प्लांट्स का। सो डेवलप अ हॉबी इन दैट टाइम। तो आपका दिमाग देखो, खाली दिमाग में तो आपके यही आएगा, तो अपने दिमाग को इंगेज करो। सो मैंने बहुत सीरीज देखी और मैंने बहुत प्लांट्स का करना शुरू कर दिया, तो वो मेरा दिमाग इधर उधर ही रहता था, तो इस चीज में मेरा दिमाग रहता ही नहीं था। डॉक्टर साहब, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो हो गया कि आपने वेब सीरीज देखी, प्लांट्स वगैरह उस टाइम में, लेकिन ओवरऑल इस एक कैंसर वाली चीज ने ओवरऑल ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? की सीखा मैं? नहीं यार, ज्यादा नहीं बदली, मैं वैसी ही हूँ। जी। नहीं, कुछ नहीं सिखाया मुझे इसने। बस थोड़ा सा मैं ज्यादा थोड़ा जो मैं खा रही हूँ, मैं पहले सोचती हूँ क्या खा रही हूँ, कभी कभार ही मैं इधर उधर करती हूँ, अदरवाइज मैं पहले देखती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। खाने के लिए तो बस थोड़ा सा ध्यान हो गया है, एंड बाकी कुछ नहीं सिखाया, सब वैसे ही है मेरा। ठीक है, बस मुझे ये लग गया कि इससे बुरा और कुछ नहीं होता, सो जो बुरा था वो खत्म हो गया, अब अच्छा ही है। ओके। आज ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ ਮੈਮ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? सी, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जे इतना कुछ कैंसर या कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। हमें बहुत जल्दी उसके लिए, वी शुड नॉट डिले आर ट्रीटमेंट्स, या जो भी हमारा डॉक्टर कंसल्टेशन होता है उसको डिले मत करो। जितना आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो, उतना एटलीस्ट उतना तो अपने आप को दे दो। तो अगर जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर्स, जो ट्रीटमेंट वो बताते हैं वो करवा लो, डोंट लिंगर इट ऑन। अगर जो आप उसको डिले करोगे, आप ही के लिए नुकसान है। एंड यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ योर फैमिली। तो अगर जो आपको कुछ होता है, तो आगे आप सोच लो आपकी फैमिली के साथ क्या होगा। सो बी स्ट्रॉन्ग, टेक एवरी ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट लेने वक्त भी ना, डोंट बी वीक। ठीक है, हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, टेक लाइफ एज इट इज कमिंग, बी स्ट्रॉन्ग, एंजॉय योरसेल्फ, डोंट स्टॉप एंजॉयिंग। यू आर the best people that the earth can have. Females are they are the bubbles of the house यार। सबसे कहते हैं खुशी उनके चारों तरफ होती है। आप चले जाओ, सोच लो घर में कैसा सुनसान सा हो जाता है। सो बी स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ ऐसा होता है तो डिप्रेस मत हो, स्ट्रॉन्ग रहो, अपना ट्रीटमेंट लो, सब कुछ ठीक हो जाना है। आप खुश रहोगे, आपकी अगर जो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ही ऐसे होता है, इस टाइप के ट्रीटमेंट्स, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे इंडियन आयुर्वेदा में तो यही कहते हैं कि भाई अगर जो आपके अंदर विल पावर है, आप हर बीमारी को बीट कर सकते हो। बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग रहना है, बेचारा नहीं बनना हमने, हम बेचारे नहीं हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ?
मेरा तो इंश्योरेंस था, बट आई थिंक मेरी कीमोज और सर्जरी was somewhere around 17-18 lakhs. हम्म पर पर उस समय दवाइयाँ महंगी थी, हम्म, अब ठीक है। सस्ती हुई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत नहीं, मेरे टाइम के भी ट्रीटमेंट मुझे पता है, जब मेरी पहली कीमो हुई थी और मेरे को WBCs के लिए पेट में इंजेक्शन लगते थे, वो मुझे खुद ही ओके लगाने होते थे फिल्ग्रास्टिन के, तो उसका रेट ही मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे भी कम हो गया था। ओके एंड अब तो डिस्टिंक्टली हर जगह गवर्नमेंट ने बताया कि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं, बिकॉज ये दवाइयाँ जो होती हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से होती हैं, जी इट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। तो आई थिंक सस्ता हो गया है ट्रीटमेंट अब। और जी आजकल तो बहुत कार्ड्स बन रहे हैं और सब। हाँ, इंश्योरेंस लेना चाहिए सबको, जो जो ले सकता है प्लीज इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि आजकल नहीं पता क्या बीमारी, तो इंश्योरेंस मेक्स इट कंफर्टेबल फॉर पीपल। चाहे थोड़ा सा लो पर ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। जी जी इट देन द पर्सन डज नॉट थिंक अबाउट द ट्रीटमेंट। वरना बंद, अगर जो पैसा नहीं होता तो लोग सोचते हैं पैसा कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। पैसा नहीं है तो कार्ड बनवा लो, जो वो आयुष्मान भारत कार्ड या कुछ ऐसा कार्ड बन रहा है या जो भी बन रहा है वो बनवा लो। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आई थिंक नहीं, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा इंश्योरेंस नहीं दिया था, बट आई थिंक इतना था। जी डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ਤੁਹਾਡੇ profession ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹੇ? हाँ, मैं 1997 से आई एम प्रैक्टिसिंग। ओके सो 27 में 30 साल हो जाएंगे, जी ठीक है। एंड मेरा ट्रीटमेंट मतलब जिस दिन मेरी सर्जरी थी उससे पहले दिन तक मैं क्लिनिक जा रही थी, यानी 21 दिसंबर 2022 तक मैं क्लिनिक जा रही थी। 22 दिसंबर को मेरी सर्जरी थी। सो उसके बाद सर्जरी जब हो गई, उसके बाद मैंने क्लिनिक से ब्रेक ले लिया था। एंड देन आई वेंट बैक। तो 23 में जब मेरी, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में मैंने क्लिनिक 2023 में जाना शुरू कर दिया था। ओके ओके बट आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन पेशेंट्स बिकॉज ड्राइनेस थी, विजन इतना अच्छा नहीं था, हाथों को प्रॉब्लम थी, फिंगर टिप्स पे मेरा क्या कहते हैं नमनेस थी, मतलब हमें दवाइयों से नमनेस हो गई थी, जो भी साइड इफेक्ट्स थे, तो मैं नहीं काम कर पाती थी। बट हाँ, मैं कंसल्टेशन कर रही थी, मैं ट्रीटमेंट प्लान्स बना रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू द क्लिनिक। तो मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट हैं, वी हैव अदर डेंटिस्ट आल्सो एट द क्लिनिक, तो सब कुछ कंफर्टेबली हो रहा था। एक्टिव वर्क मैंने आई थिंक 1 साल बाद करना शुरू किया था। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਸਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ हाँ, आराम से। अब फुल रिकवरी में तो डॉक्टर्स ही कहते हैं 5 साल लग जाते हैं। ਜੀ So it's like, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं यही जी। करेक्ट करती हूँ। आपने वीट ग्रास का नाम लिया। मेरे को भी बोला था, जब मेरी कीमो चल रही थी तो WBCs मेरे बहुत डिप हो रहे थे, ठीक है। एंड बॉडी में बहुत, इट इज लाइक द डॉक्टर सेड वी आर पुटिंग पॉइजन इन योर बॉडी, ठीक है। तो उससे बीमार जो कैंसर सेल्स हैं वो तो मरेंगे ही, पर नेचुरल सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। ओके तो मेरे को भी बोला था, एंड इट रियली इफेक्ट्स। मैंने वीट ग्रास ग्रो किया था घर पे ही, ठीक है। और सुबह उसको क्लिप करके मैं उसको मतलब मिक्सी में नहीं, हाथ से ही कूट के और उसका जूस निकाल के थोड़ा सा पीती थी। उससे मेरे WBC, एक तो बॉडी कूल डाउन हो रही थी, उससे वो ठंडा होता है, तो वो जो गर्मी हो रही थी बॉडी के अंदर उसको वो कंट्रोल कर रहा था। बहुत 100% नहीं कर रहा था, पर कर रहा था। एंड WBCs पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा था उससे। ओके मतलब वर्क कर ब्लड प्योरिफिकेशन। हाँ, तो वीट ग्रास तो मैंने भी पिया ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट, आई हैड इट एंड इट वाज इफेक्टिव। ओके ओके ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।